Okay, we move on from, yes, we move on from boundaries, we move on from the couple to being parents. और अभी हम अपनी सीमाओं को जो पढ़े हैं उससे बाहर निकलकर अभी जो माता पिताओं की शैलियों पर जाएंगे, परवरिश के ऊपर. Okay? So, any parent here? कोई पिता है यहाँ पर? How many children do you have? आपके कितने बच्चे हैं? One daughter. How old? 14. What about you, brother? 14. Two. 2. How old? 14 and 10 years. 14 Okay. साल और 10 साल. All right. और कौन पिता है यहाँ पर? माताएं हैं? माताएं नहीं है. Who's the youngest here? कौन है? बिल्कुल बहुत ही युवा है. 15. Who's 15? Huh? कौन है एकदम युवा? Anyone 15 years here? 15 साल का कोई है? No. 18. You're 18. 18 साल. Oh, many 18. 17? 17 साल के? Wow. 17. Wow. 16? 16 साल का कोई है? हाँ. Oh, so many. Yes. 16 My years. gosh. 14 साल के? 16 years. Wow. 16. Wow. Nice. Nice that to see you all come here to learn about the Bible. और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आकर बाइबल की बातों को सीख You're रहे like my children. My daughter is 16. हैं. आपकी बेटी 16 साल की है. Okay. All right. Okay. So we're going to learn about biblical principles of parenting. और हम बाइबल आधारित माता पिता के परवरिश के माता पिता द्वारा परवरिश की बातों को हम देखेंगे. So just like God made marriage, जिस प्रकार परमेश्वर ने विवाह को स्थापित किया, anything that happens under that under this institution is also divinely given by God. और उस संस्था में जो देखते हैं कि वहां पर एक दैविक बुलाहट को हम देखने पाते हैं, दैविक कार्य को देखने पाते हैं. So parenting is actually a ministry. और जो परवरिश है, Parenting is a ministry. परवरिश जो है एक सेवकाई है. Okay. So as parents, we work with God to carry out His purposes. और माता पिता के रूप में हम देखते हैं कि परमेश्वर के उस उद्देश्य को लेकर बाइबल आधारित पर लेकर चलना. So one of the purposes of marriage is for a husband and wife to have children. पहला जो हम देखते हैं, इस बात को समझते हैं, विवाह का जो उद्देश्य है वह है बच्चों को प्रदान करना या बच्चों को उत्पन्न करना. And these children are raised to be godly children. और वो बच्चे परमेश्वर में बढ़ना. So we understand our relationship with God the Father. हम उस रिश्ते को समझना है जो परमेश्वर पिता है. So God is our Father. परमेश्वर हमारा पिता है. And so we receive everything from God our Father. और हम सब कुछ अपने पिता परमेश्वर से प्राप्त करते हैं. Like think of what you receive from your earthly father. और जिस प्रकार हम सोचे जिस प्रकार इस पृथ्वी पर हमारे शारीरिक पिता के द्वारा हम प्राप्त करते हैं. What do you get from your earthly father? और इस पृथ्वी में जो हमारे शारीरिक पिता के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? Huh? क्या प्राप्त करते हैं माता पिता के द्वारा या पिता के द्वारा? Okay, love. What do you say? Huh? Needs, you said. जरूरतें. Okay, okay. Okay, all right. Care. What are some not getting the word. Okay. How do I know that you are
Sorry, yes, that's what I was looking for. So, how do I know that you belong to a certain family? और हम कैसे जान पाएंगे कि आप एक विशेष परिवार के द्वारा आते हैं? Through your surname, आपके जो उपनाम के द्वारा. right? So, you come from the family of, give me a surname, somebody's surname. Paul, मान लीजिए आप एक पॉल के परिवार से आते हैं. right? So, you are the son of Paul or the daughter of Paul. आप पॉल के पुत्र हैं और या पॉल की पुत्री है. Right? You have an identity being, you have an identity being in Paul's family. और आपकी पहचान उस पॉल परिवार के ओर से होती है. So similarly, इसी प्रकार even our children has an identity. हमारे बच्चों की एक पहचान है. And the children, as the Bible says, are an inheritance from the Lord. और बच्चे प्रभु की ओर से मिरास है. What does this mean? इसका अर्थ क्या है? Children are an inheritance from the Lord. बच्चे प्रभु की ओर से मिरास है. मिरास इसका अर्थ क्या है? What does it mean when you get your inheritance from your parents? और मान ली आपके जैसे आप अपने पिता के द्वारा कैसे मिरास में हैं? It's your birthright. Okay. It is actually not yours, आपके नहीं है, but was given to you because you belong to the family. Isn't it right? आप दिए गए आप क्योंकि परिवार के द्वारा हैं. That's what inheritance means. इसका मतलब है वास्तव में उस पिता की ओर से है. So माता पिता की ओर से. Psalm 127:3 says, "Children are a heritage or an inheritance from the Lord." और भजन संहिता 127:3 में पढ़ते देखो बच्चे प्रभु की ओर से विरासत है. So my children, whose are they? मेरे बच्चे क्या कौन है? किसका है? मेरे बच्चे किसके हैं? They are actually God's. वो परमेश्वर के हैं. But they have been given to me. और वो मुझे परमेश्वर की ओर से दिया गया है. To help them follow God and His purposes. और उनकी सहायता कर सके, मदद कर सके उद्देश्य को पूरा करने के लिए. So whose responsibility is it that they go in God's purposes? और किसकी जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सके? My responsibility. ये मेरी जिम्मेदारी है. Right? So that's what it means when the Bible writes that children are an inheritance. और इसलिए बाइबल में बताया गया है कि बच्चे प्रभु की ओर से विरासत के रूप में हैं. Okay. One of the instructions that the word gives for parents. और एक जो निर्देश दिया गया है जो माता पिताओं के लिए is for us to love. क्या करना है? उन्हें प्रेम करना है. So the love, the same love through which Christ loved us. और प्रेम कैसा है कि जिस प्रकार मसीह ने हमसे प्रेम किया उसी प्रकार उनके साथ प्रेम करना है. So it should be unconditional love. बिना शर्त के प्रेम. So how can I as a parent love my children unconditionally? तो मैं एक पिता माता होने के नाते किस प्रकार बिना शर्त के मैं बच्चों से प्रेम करूंगा या करूंगी? Can you give me an example? कोई एक उदाहरण दे सकते हैं? Example. एक उदाहरण. Sacrificial is another aspect. वो बलिदान एक दूसरा वो है प्रकार है. Very good. Okay. So she said, raising my child without an expectation or loving them without an expectation that one day he or she will look after me. हाँ, ये प्रेम जो बिना शर्त का प्रेम का मतलब ये है कि माता पिता अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं. प्यार करने का मतलब ये नहीं है प्यार करते रहे कि हमें बाद में कुछ मिलेगा या हमें कुछ उनके द्वारा कुछ प्राप्त करेंगे. Or that I will love them only when they bring 100 out of 100 in SSLC. तब तक प्रेम करूंगी जब तक 100 में से 100 लेके नहीं आएंगे. That's unconditional. वो बिना शर्त वाला प्रेम.
And यानी 100 लाएंगे तभी मैं प्रेम करूंगा, ऐसा नहीं है। so the love of a parent needs also to be immeasurable. It can't be measured. और दूसरा देखते हैं कि माता पिता का प्रेम जो है बिना नाप का होना चाहिए। There should be no limit. There's no boundary for that. उसके लिए कोई भी एक सीमा नहीं होना चाहिए। Yeah, to love with all your heart. और हमें क्या करना है, हमें पूर्ण हृदय के साथ उनसे प्रेम करना है। So even if they don't do things that you expect them to, you still love them. और आप अपने जीवन में उनके, हो सकता है उनके द्वारा कुछ चाहते होंगे, अगर नहीं मिल रहा है उसके बावजूद भी आप उनसे प्रेम को दिखाना है। Okay, that's what it means to show the kind of love that God shows. और इसी प्रकार परमेश्वर प्रेम को जो दिखाता है, उसी प्रेम को हमें उनके साथ करना है। So how do young children learn about things? और कैसे जो युवा बच्चे इन बातों को सीखते हैं, प्राप्त करते हैं? What do you think? How did you learn? आप लोगों ने कैसे सीखा? I'm not talking about academics. I'm not talking about physics, chemistry, math. और ना गणित के बारे में, ना विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। How did you learn to respect elders? आपने कैसे सीखा आप अपने बड़ों का आदर करने के बारे में? Yeah, because you saw your parents do that. क्योंकि आपने अपने माता पिताओं को देखा बड़ों का आदर करते हुए। So when you were young or much younger, when you all were younger, जब आप युवावस्था में थे, you would have probably imitated somebody you really liked as a role model. आप जैसे मान लीजिए आप उनका प्रेरणा स्रोत बनते, किसी ने आपका नकल किया हो। I don't know, maybe, what's his name? What's that cricketer's name? Why am I forgetting? Virat Kohli, Virat yes. Maybe you wanted to make a beard like Virat Kohli. और मान लीजिए विराट कोहली के समान आप दाढ़ी मूछ रखना चाहते हो। Or some actress, you wanted her hair, मान your लीजिए hair कोई- like the कोई actress. फिल्म का कलाकार हो, उसके समान बाल को रखना चाहते हो, स्टाइल रखना चाहते हो। No, correct, no, when you were smaller. जब आप छोटे तो करते ना कटिंग, That's what is called a role model. ये उसको कहते हैं हमें क्या करना, प्रेरणा स्रोत। कोई You- हमारा प्रेरणादायक बन जाता है। You really like them and so you do what they do. हाँ, आप किसी को पसंद करते हैं, आप उसके समान बनने का प्रयास करते हैं। So in the home, और घर में भी the parents become a role model. माता पिता हमारे एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। So for children, their parents are their first hero or heroine. और बच्चों के लिए सबसे जो प्रथम पहले जो हीरो है और हीरोइन कौन है? माता पिता। So what is the responsibility of the parent? तो माता पिता की क्या जिम्मेदारी है? To be a good role model. एक अच्छा प्रेरणा स्रोत बनना है। So we have to be careful as parents in the way that we interact. जब माता पिता होने के कारण जब हम उनके सामने एक आदर्श को जब दिखाते हैं, Our behavior, हमारे व्यवहार, our words, हमारे शब्द, all our actions are being watched by the children. जो भी हम कार्य प्रणाली करते हैं वो बच्चे हमें देखते हैं। So children always learn by seeing. और बच्चे हमेशा सीखते हैं माता पिताओं को के जीवन के द्वारा। They learn by what you do आप क्या करते हैं उसके द्वारा, more than by what you say. आप जो शब्दों को बोलने के द्वारा। We played that dosa हमने- coffee game, no? हमने सीखा ना, खेल So खेला, डोसा चाय कॉफी। how did all of you get out? कैसे आप निकले इसमें से? Because you were looking at what I was doing, आपने मुझे देखा मैं क्या कर रही हूँ, not what I was saying. लेकिन उस शब्दों के द्वारा नहीं। That's what happens in real life. कई बार ऐसे हमारे जीवन में होता है। We learn हम जो सीखते हैं, we learn with what our parents do. हम कैसे सीखते हैं कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं। So on Sunday, you may see your parents in church lifting hands and worshipping. मान लीजिए आप अपने माता पिता को चर्च में आराधना के समय हाथ उठाकर आराधना करते हुए देखते हैं। But Monday to Saturday, you see a very, very angry father and और आप सोमवार से लेकर शनिवार तक क्रोध से भरा हुआ माता पिता को देखते हैं। a very, irritated mother. और देखते हैं कि बड़े घृणित रूप से देखते हैं। What do you learn?
क्या हम सीखते हैं उससे? The same thing. वही जो उनके जीवन में जो आपस में करते हैं. Right? So, as a parent, how you model your behavior should be good and should be Christ-like. और एक माता पिता होने के नाते स्वभाव, आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए, Because parents influence the behavior of their children. क्योंकि माता पिता प्रेरणा स्रोत होते हैं उनके जीवन को देखकर. So, maybe as parents, first of all, we have to unlearn all the mistakes we learned from our parents. कई ऐसी गलतियां जो होती है हम अपने माता पिताओं से सीखते हैं जो उन्होंने किया है, And we continue that in our other further और generations. हम क्या करते हैं, लगातार उन बातों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी करने का प्रयास करते हैं. All right. So, as parents, we have a responsibility to teach our children how to live. और माता पिता होने के नाते जो जिम्मेदारी है, कैसे बच्चों के साथ आचरण करें, व्यवहार करें और उनको सिखाएं. Because as a parent, you are responsible for training them. और माता पिता की एक जिम्मेवारी है कि बच्चों को उनको प्रशिक्षण करें. Okay. Some of you tell me a discipline that you have learned from your parent. क्या आप बता सकते हैं कि आपने अपने माता पिता के द्वारा या अपने घर में अनुशासन को जो सीखे हैं? कौन से ऐसे अनुशासन है जो सीखे? Huh? To wake up early in the morning? सुबह जल्दी उठना. Okay. So that's what you learned from your parent. Okay. आपने Then अपने माता पिता से सीखा. और obeying elders. Okay. बड़ों का आदर करना. So your parents obeyed some elders and you learned that. Okay. All क्या right. आपके माता पिता Some other आदर discipline, करते हैं? something that you do. और कोई? Huh? How to speak. Okay. कैसे Speak to others. Okay. कैसे दूसरों से बात करते हैं? Maybe you learned about saying sorry or thank you, or you सकता है। learned when elders come into the house, you get up. और जैसे आप बड़े बुजुर्ग आपके घर में आते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं. Right? How did you learn all this? कैसे आप कैसे सीखे हैं? Because of your parents, right? So, आपके माता पिताओं के कारण. so your parents are the one who's teaching you this through their behavior. और वो माता पिता आपको ऐसे व्यवहारिक बातों को व्यवहार के द्वारा करके दिखाते हैं और जिसके द्वारा सीखते हैं. So all the values and principles you want your children to learn, even you have to be doing so. और बच्चे उन बातों को सीखते हैं जो बहुत ही जिम्मेदारी है, जिम्मेवार होना पड़ता है और उसकी कीमत को समझना पड़ता है. So I'll tell you a story. एक कहानी को मैं बताना चाहती हूँ. There was this father who taught the child to be honest. और वो एक पिता ने अपने बच्चे को ईमानदार होने सिखाया. So one day the father did not want to go to his office. एक दिन उस बच्चे के पिता ऑफिस जाना नहीं मांगा. So the father's manager calls the father on the phone. और फोन में उस ऑफिस के उनका जो मैनेजर है उनसे वार्तालाप की, उनसे बातचीत की. And the child picks up the phone. और बच्चे ने उस पिता का फोन उठाया. So the father tells the child, पिता अपने बच्चे से क्या बोलता है? tell my manager that I'm sick. और वो बच्चे से बोलता है कि मेरे मैनेजर को बोल दो कि पापा बीमार है. Okay. You know what the child says? तो बच्चे ने क्या कहा मालूम है? पापा ने कहा, Huh? My father told me to tell you that he's sick. हाँ, मेरे पिता ने कहा है आपको बताने के लिए कि मेरे पापा क्या है, बीमार है करके. But he's not sick. लेकिन वो बीमार नहीं है. So, you know, what you teach your children is what is going to happen. बच्चे को आप क्या सिखाते हैं वो संभव हो ना. So teach them good values and good principles. और उन्हें क्या करना है, अच्छे बातों को सिखाना है, ईमानदारी सभ्यता की बातों को सिखाना है. One important thing when you are raising children is to understand your children. जब आप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं तो एक बात को समझना बहुत जरूरी है. Are there any brothers or sisters here, siblings here in the यहाँ पर group? कोई भाई और बहन है, सगे भाई बहन यहाँ कोई है भाई बहन के रूप में? Who?
Who's your brother, sister? आपकी You all are बहन brothers? सिस्टर? You all are Okay. brother, sister. Okay. Okay. भाई बहन Anyone है। else? और कोई? Both of you all are sisters? दोनों बहन है। Okay. और Anybody इधर else? कोई? और किसी की भाई You? बहन है? You have a brother, sister? No. Okay. So, do you think you all are the same? क्या आप समझते हैं आप लोग एक जैसे हैं Or are you all different from each या other? आप अलग अलग हैं? You all are same. Same. सेम। You all think the same way? आप एक ही जैसा सोचते हैं? Uh-huh. Okay. Maybe not in your thinking, in your behavior. या कई बार आप मन में सोचते हैं लेकिन व्यवहार में नहीं होता होगा, You all are different? Yeah. और इसका मतलब आप अलग है। What about you all? आपके साथ भाई बहन Who's the more talkative one? कौन सबसे ज्यादा बात करता है? दोनों बात नहीं करते हैं. दोनों बात नहीं करते? कौन बात करता है? You talk more than him? हाँ? हाँ भाई, क्या भाई सही बोल रहे हैं? So tell me one thing that is different about both of you. तो आप बताएं आप में दोनों में कौन सी बात अंतर है? किन बातों का अंतर है आप दोनों में? ज्यादा बोलते हैं क्या है? Mike. गुस्सा ज्यादा आता है मुझे। God, you get angry more? हाँ। Okay, all right. तो सबसे ज्यादा आप गुस्सा करते हैं। So tell me, how do children from the same family become so different? एक ही परिवार से एक ही माता पिता के जो परिवार से आने वाले दो बच्चों का जीवन कैसा अलग होता है, भिन्न होता है। Anyone has a sibling who's very different from them? और आपके और कोई बहन भाई हो जो आपसे अलग हटके हो? So you should see my sister. I have a sister 7 years older than me. और 7 years. Yeah, older. आपकी बहन है जो आपसे बड़ी है, Okay. She is this short. और वो उनका हाइट ज्यादा नहीं है, ऊंचाई ज्यादा नहीं है। When we were smaller, जब हम छोटे थे I was like a pencil, मैं एक पेंसिल के समान थी, and दुबली she was a little और fatter. बहन छोटी वाली बहन थोड़ी मोटी, बड़ी बहन थोड़ी She मोटी has थी। straight hair. उसके लंबे बाल थे, I have curly hair. मेरे बाल उसका सही नहीं था। She's very talkative. वो सबसे ज्यादा बात करने वाली थी, I wouldn't talk much. मैं ज्यादा बात करती नहीं थी। So how does this happen? ये कैसे होता है I don't know. मुझे नहीं मालूम। But as parents, एक माता पिता होने के नाते we need to understand that our children are very, very different. इस बात को समझना है कि बच्चे अलग अलग स्वभाव, बच्चों में भिन्नता पाई जाती है। So my children, I told you I have a boy and a girl. और आपके पास दो बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की। My son is very friendly. आपका जो बेटा है बहुत ही मित्रता को बनाने वाला है। But my daughter is very, very quiet. She's more to herself. बेटी एकदम बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल एकांत में रखने वाली। Now, if I did not understand their behaviors, अगर मैं दोनों की उनके व्यवहार को ना समझूं, I would have pushed them to be a certain way. तो मैं क्या होगा कि मैं उनको एक ऐसे कार्य करने के लिए उनको मैं धकेलने का प्रयास करूंगी। So my son always used to like to talk to others. और मेरा बेटा हमेशा दूसरों से बात करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। But my daughter does not like to talk much. और बेटी ज्यादा बात नहीं करती है। So if I didn't understand these qualities, और मैं इस योग्यता को नहीं समझूं, I would have pushed my daughter to be someone she is not. तो क्या होगा कि मैं अपने बेटी को धकेलूं या उसे जबरदस्ती करूं जो है ही नहीं उसके अंदर। And what would happen? क्या होगा जबरदस्ती करने से? It would made her upset or break her. और क्या हो सकता, मैं उसको तोड़ सकती हूँ उसके मन को और उसके विचारों को बदलने का प्रयास करूंगी, धक्का पहुंचाऊंगी मैं। So as a parent, we need to understand how our children are different. एक माता पिता होने के नाते इस बात को समझना है बच्चों के अंदर जो भिन्नता है, and prepare them for what they can achieve. और हमें तैयार करना है कि वो किस प्रकार वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। So the Bible talks about the children are like arrows. और बाइबल बताती है
कि बच्चे जो है एक तीर के समान है। What do you do with arrows? तीर को क्या करते हैं हम लोग? Shoot, you release it. उससे क्या करते हैं? हमें धनुष में रखकर उसको को क्या कर तैयार करके दूर भेजने के लिए। So you release it looking at where it should reach with an aim. वो तीर को छोड़ने से पहले हमें निशाना हम लगाते हैं कि उसको कहाँ सही जगह लगना चाहिए। So that's how you deal with your children also. इसी प्रकार हम बच्चों के साथ व्यवहार बनाना है। How far can a child go? How far can they be aimed? कि वह बच्चा कितना दूर तक जा सकता है, So that they can have the right influence in their world. ताकि अब संसार में अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्रभाव डाल सकते हैं, प्रभावशाली बना सके। So before you release them, you need to understand them. जब हमें उनको छोड़ते हैं तो उससे पहले उनको हमें समझने की आवश्यकता है। How do we understand children? कैसे हम बच्चों को समझेंगे? By observing them, उनको हमें ध्यान देने के द्वारा, by talking to them, उनसे बातचीत करने के द्वारा, by spending time with them, उनके साथ समय व्यतीत करने के द्वारा, by doing things that they like. और वो क्या पसंद करते हैं उसके द्वारा। So that will help you to know your child a lot more. तो आप क्या कर सकते हैं? उन बच्चों को समझने का प्रयास करते हैं। Okay. Now, children go through different stages in life. और देखते हैं कि बच्चे अलग अलग अवस्था में होकर बढ़ते हैं। So I will not feed my 20-year-old son like how I used to feed him when he was 3 years old. मेरे 20 साल के लड़के के साथ मैं उसको भोजन नहीं खिलाऊंगी जब वो छोटा था या बच्चा के रूप में था। So I would feed him, no, when he was 3 years old. जब 3 साल का था तो मैं क्या करते, अपने हाथों से खाना खिलाती थी। But is it appropriate that I feed him when he's 20? क्या वो ये जरूरी है कि जब 20 साल के हो गए तब हमेशा हाथ से खिलाती रहूं? No, right? सही बात है। So when he was 3 years old, or when my daughter was 3 years old, I used to tell them what clothes to wear. और दोनों बच्चे जब 3 साल की उम्र के जब थे, तब उनको मैंने सिखाया कि कैसे कौन से अपने वस्त्रों को पहनना है। But now when they are older, should I tell them what to wear? अभी बड़े हो गए तो मैं क्या उनको बार-बार बताती रहूंगी कौन से कपड़े पहनना करके? So as a parent, I must learn to deal with them according to their age. और माता पिता होने के नाते उनके उम्र के अनुसार हमें उनसे व्यवहार करना है, उनके साथ तरीकों को अपनाना है। If I was walking on the road with my 4-year-old child, अगर मान लीजिए मैं 4 साल की अपनी बेटी के साथ सड़क पे चल रही हूँ, I will instruct her to hold my hand and walk with me. और मैं उसे निर्देश दूंगी कि मेरा हाथ पकड़कर चलना है। But when he is a 15 or a 16-year-old, जब अगर वो 15 या 16 साल की उम्र की जब हो जाती हैं, I allow him to do that himself. तो मैं उसे अनुमति दूंगी कि आप अपने आप में चले। So, depending on the age of the child, we have to begin to engage with them differently. तो हमें क्या करना, उनकी उम्र के अनुसार उनकी अवस्थाओं में कार्य करने के तरीके को हमें अपनाना है। So that is the only way that our children will grow up in independence and in understanding. और इसी प्रकार बच्चे अपनी समझ में और स्वतंत्रता के साथ अपने आधार को बनाते हुए चलने के लिए उनको हम आदेश कर सकते हैं, निर्देश कर सकते हैं और बढ़ते हैं। Okay, so we will look at what does it mean to discipline children. और हम देखेंगे कि एक अनुशासित बच्चों के बर्ताव या जिनका जीवन। What does the word discipline mean? हम अनुशासन के अर्थ को हम समझेंगे। What does discipline mean? अनुशासन का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? To correct? Okay. Huh? सकारात्मक अनुशासन क्या है? To obey? आज्ञाकारी होना। What does discipline mean? अनुशासन का अर्थ क्या है? Does it mean to punish? क्या उनको दंड देना? So, okay, so discipline actually means to train. अनुशासन का मतलब यह है उनको प्रशिक्षण देना, उनको सिखाना। To teach, yes, to train and to teach. उनको सिखाना
और तैयार करना। and to prepare. Very good. Yes. So that is the objective of discipline. और ये है सकारात्मक अनुशासन। So we should keep our discipline good and positive. और हमेशा अनुशासन में ये सिखाना है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। So how were you all disciplined as children? How were you all disciplined as children when they were young? Yeah. जब आप अपने घर में थे तो आप किस प्रकार अनुशासित किए गए? Belt, बेल्ट से मारकर अनुशासित किया आपको? मोटा डंडा, danda. बांस का Yeah. डंडा? Yeah. यस यस। Then हाथ से झापड़ मार के पिटाई मिलेगा। no food. खाना नहीं मिला होगा, ऐसा हो गया, दंड मिला आपको? Huh? That was a good one for my father. He didn't have to discipline. He just has to look at me with my eyes. I would be scared. बिल्कुल, क्या बोलते हैं, डंडा उठाने की जरूरत नहीं किसी को। आपके पिता जो थे केवल आंख दिखा देते थे, बस छुट्टी। No? Right. So we need to look at discipline being positive. और हम अनुशासन को हम सकारात्मक रूप से देखें। What are some good positive ways कौन से ऐसी अच्छी सकारात्मक बातें हैं? to explain what is right, what is wrong? और क्या करना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है? To bring some restrictions when they are not obedient. जब वो आज्ञाकारी नहीं होते हैं तो हमें कुछ उनको निर्देश देने की आवश्यकता है। So disciplining is a time of learning. और जो अनुशासन का वो है जो सीखने का समय होता है। And it is a time to change the behavior of the child. और बच्चे के व्यवहार और आचरण बदलने का समय होता है, सीखते हैं। Okay. Another important aspect of discipline is to build a relationship first. दूसरा जो तरीका है अनुशासित होने का वो है अपने रिश्ते को कायम करने का, रिश्ता बढ़ाने का। So you may tend to obey someone who you really respect. मान लीजिए आप किसी You may obey someone who you really respect. आप उस व्यक्ति की बात को मानते, आज्ञा का पालन करते हैं जिसका आप आदर करते या सम्मान करते हैं। Think of when you were in school. आप सोचे जब आप स्कूल में थे, you would do the homework of your teacher who is nice to you. और आपने आपका गृह कार्य जो आपको दिया गया वो हो सकता है वो टीचर, वो शिक्षक आपके लिए बहुत अच्छा होगा। But when you don't like the teacher, you don't do the homework. हाँ, अगर आपके लिए वो टीचर सही नहीं, अच्छा नहीं है, तो Correct. घर में आके वो होमवर्क जो दिया गया वो नहीं करेंगे आप। So now I know why some people read the lessons and some people didn't. अब समझ में आ गया कि क्यों जो लोग जाकर जो काम देते हैं पढ़ते हैं और जो लोग नहीं पढ़ते हैं, समझ में आ गया, अच्छा नहीं लगा। Correct, no? Joke. Okay. मजाक से बोल रहे हैं। All right. So when you relate with your child a lot more lovingly, they are more willing to obey your rules. जब आप प्रेम के साथ माता पिता हो, अपने बच्चे के साथ रिश्ता बनाएंगे तो क्या होगा, वो रिश्ता के द्वारा वो और अधिक आज्ञाकारी बनेंगे। Okay. Another important one is to set good boundaries. और अगला जो पॉइंट है, सीमाओं को समझे। And these boundaries should be communicated well. और ये जो सीमाएं हैं वार्तालाप करने के द्वारा हो सकता है। So for example, if your child has gone out to play, और उदाहरण के लिए आपका बच्चा बाहर खेल के मैदान में खेलने के लिए गया, you need to communicate to them when they have to come back. और आप उनके साथ वार्तालाप करें जब वो वापस आते हैं, So that they know what the boundaries are. तो वो समझ पाए कि हम उनके लिए सीमा क्या है। And as children grow, you can change some of those boundaries. और बच्चे जब बढ़ते हैं तो जो सीमाएं पहले थी उस सीमाओं को बदलने का प्रयास करें। So because I have told my child when he was 10 years old what time he has to come home. और जब मेरा बच्चा जब 10 साल का था तब मैंने उससे कहती थी कि आपको किस समय घर पर वापस आना है। But now he's 20, I don't tell him that. अब वो बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन आप मैं उसको नहीं कहती हूँ। But he knows that he should, if he's late, he should inform me.
और अगर मान लीजिए वो लेट होता है तो उसका कर्तव्य है अपने माता पिता को बताना। So those boundaries have changed. अभी वो जो सीमाएं हैं बदल गई है, But then those have been established before itself. और उसको क्या किया, पहले से ही उसको सिखाया गया या मजबूत बनाया गया है। Okay. One part of discipline is also to increase the responsibility that you give children. अगला जो अनुशासन का बनाने का जो पॉइंट्स है कि उसकी जिम्मेदारी को कैसे समझना या बढ़ती हुई जिम्मेदारी को लेना। So as children grow, their responsibilities also grow. जब बच्चे बढ़ते हैं साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। So as that responsibility grows, you are also giving them freedom in that और responsibility. जिम्मेदारी जैसी बढ़ती है तो उसमें धीरे धीरे क्या करते हैं, हम नियंत्रण को भी छोड़ देते हैं। So maybe to look at an example, उदाहरण के लिए हम देखेंगे, maybe when they were smaller, I would take a little bit more, I would be more careful about what they're watching on TV. जब वो छोटे थे तो टीवी में क्या प्रोग्राम आता है उसको देखने के लिए मैं सीमाओं को मैं रखती थी। So I have given them some principles about what they can watch. और कुछ सिद्धांतों को मैंने उनसे कहीं बताया कि क्या चीजों को देखना है। And now when they are older, I believe they will follow the same principles. अभी वो बड़े हो गए हैं तो मैं इस पर विश्वास करती हूँ कि जो उनको सिखाया है और वो अभी क्या देख रहे हैं। So I believe that they will be responsible enough to watch that which is good. हाँ, अब मैं विश्वास करती हूँ कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना। Okay. When you're disciplining your child, जब आप अपने बच्चों को अनुशासित करते हैं, it's very important that the father and mother needs to be in agreement. और तो इस बात को समझना है कि माता पिता आपस में सहमति को भी करना है। If they are not in agreement, what will the child do? अगर माता पिता आपस में सहमत नहीं है तो बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा बच्चा? Okay, so they will play games with you. They will do only what they want. They will obey only the parent that they want. वो आपके साथ खेल खेलेंगे, वो जो चाहते हैं वो करवाने के लिए। And what will happen? The father and mother will fight. और क्या हो गया, माँ कुछ बोलेंगी, पिता कुछ बोलेगा तो आपस में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होंगे। Right? So the parents have to be in agreement when they're disciplining children. अगर बच्चों को अनुशासित करना है, सबसे पहले माता पिता सहमति को रखना है, सहमत होना है। Again, another important part is not to show partiality to children. अगला जो है, बच्चे के साथ किसी प्रकार का पक्षपात ना करें। Who was partial in the Bible? बाइबल में किसने पक्षपात किया? Rebecca was partial to Jacob. रेबिका ने किसके साथ पक्षपात किया? And Isaac was partial to Esau, right? याकूब है ना। And what happened? क्या हुआ? रेबिका ने पक्षपात किया तो What happened between the brothers? लेकिन दोनों भाइयों के बीच में क्या हो गया? Yeah, it was not a pleasant relationship, no? वहां पर एक क्या बोले, अच्छा एक रिश्ता नहीं बना दोनों के बीच में, And all because of partiality. क्योंकि पक्षपात के, माता पिता के पक्षपात के कारण। So as a parent, we should never be partial to our children. और माता पिता क्या होना है, कभी भी अपने बच्चों के साथ पक्षपात नहीं करना या नहीं होना चाहिए। Like the boys are better than the girls. हाँ, जैसे लड़की अच्छी है और लड़का ठीक नहीं है, उससे अच्छा होगा करके। Because the boy is going to take care of me and the girl will leave. हाँ, लड़का पूरा मेरा देखभाल करेंगे, माता पिता सोचेंगे लड़की तो दूसरे घर में जाएगी। So we should never be partial. तो कभी भी क्या करना है, माता पिता इस बात का पक्षपात नहीं करना है। Okay. Another thing is to look for the good things in your children. आप अपने बच्चों के अंदर कोई अच्छी चीजों को देखना है। Usually when we correct, in homes, parents generally look for the things to correct, not for the things to praise. और कई बार क्या होता है, माता पिता बच्चे लोग को एकदम सही करना चाहते हैं, उनको सराहना नहीं देते हैं।
right? So look for things you can praise in your children. उन बच्चों को देखें कि आप किस बातों से उसकी प्रशंसा और सराहना कर सकते हैं। So you can very clearly just say very good or nice job, हाँ, उन्हें शाबाशी दे और कहा आपने बहुत अच्छा काम किया। right? And sometimes maybe doing some things for them, like going out for dinner, buying an ice cream, going Ah. for a walk. और क्या करें, बच्चों के साथ जाएं, कहीं आपका अच्छी जगह भोजन करें और उनको आइसक्रीम खिलाएं। Okay? सही है, ठीक You है। all will all be very good parents, no? अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छे माता पिता आप भी बन सकते हैं। Okay. All right. The next thing is to, whenever you see that the children are going wrong, any kind of wrong behavior, immediately deal with it. अगर इस माता पिता का एक कर्तव्य है कि अगर बच्चा कोई गलत काम कर रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है, तुरंत उससे निपटने का, उस परिस्थिति को समझने का, भापने का प्रयास करना है। You should never ignore a mistake. उनकी गलतियों को नकारना नहीं है। That does not mean you beat them, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पिटाई करना, but then have a conversation, be direct, and help them to see their mistake. उनसे क्या करें, सीधा बातचीत करें, व्यवहार करें और उनको निर्देश दें। Okay? Remember not to simply keep arguing with your children for nothing. और जब हमें क्या करना है, बिना समझे हमें उनसे वाद विवाद नहीं करना है। And always after a correction, ensure that you love them and make them feel secure. और जब कभी हम उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, तो अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करना चाहिए। So one thing that scripture expects of us as parents, और परमेश्वर का वचन माता पिताओं से क्या चाहता है, is to require obedience from our children. और अगर वो आज्ञा पालन की मांग करना चाहते हैं तो Okay, let's read Proverbs chapter 29 verse 15. हम पढ़ेंगे वचन से, नीति वचन 13 उसका 24 पद। नीति वचन 13 उसका 24। Who has the mic? Please read. Proverbs 29:17. 29. नीति वचन 29 उसका 17। Correct your son, and he will give you rest. Yes, he will give delight to your soul. Read 15 also, the verse above that. 15 भी पढ़े। Correction and discipline are good for children. If they have their own way, they will make their mother ashamed of them. Can someone read in Hindi? Okay, so training children to obey helps our children grow well. और अगर हमें आज्ञा पालन के लिए बच्चों को हम प्रशिक्षित करते हैं तो वो बच्चे अच्छी रीति से बढ़ने पाएंगे। Okay, so it's important to correct them and guide them in obedience. और क्या करना है, हमें ताड़ना दे और उनको मार्गदर्शन करे ताकि वो अनुशासन में रहे, आज्ञाकारी बने। Because obedience is something that will help them to grow into maturity. ताकि वो उनको सहायता मिलेगी जब ताड़ना देते हैं सही परिपक्व होने के लिए, परिपक्वता में बढ़ने के लिए। So if a child is obedient to their parents, they are more likely to be obedient to God. अगर बच्चा माता पिता का आज्ञाकारिता को निभाता है या आज्ञाकारी बनता है तो क्या होगा, वो परमेश्वर के साथ भी वो आज्ञाकारी बनने में मजबूत होगा, बढ़ेगा। So in Ephesians it says, obey your parents so it will go well with you. और इफिसी के पत्र में बताया है कि अगर माता पिता के आज्ञाकारी बनोगे तो अपने आप में समृद्धि को प्राप्त करोगे। So obedience brings about a blessing. और आज्ञाकारिता जो है आशीष को लेके आती है। Okay? All right.
सही है। Okay, so I've just taken the main points, but there's a lot more to read in this. और मैंने खास बातों को लिया है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। And please go back today and जब आप- read the chapter. जब आप अपने वापस कमरों में जाते हैं, जाके उन वचनों को पढ़े, उस और अध्याय को पढ़े। Okay? ठीक है। Okay, now questions. We have only 5 minutes more and questions. 5 मिनट हमारे पास है और कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। Anything not from here. If you thought of a question for chapter 1, ask. Yes, Kunal, tell. मैम जैसे कि कई पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को गलत शिक्षा दे देते हैं, मतलब वो वैसे ही नेचर के होते हैं तो गलत शिक्षा कभी कभार दे देते हैं और बच्चा नहीं जान रहा होता है कि वो सब चीज गलत है, तो वो कर देता है तो उससे पाप हो जाता है। तो सही है, तो वो पाप उसके मम्मी पापा के ऊपर जाएगा कि उसके बच्चे के ऊपर? Galit shiksha like what? जैसे? जैसे कि क्या गलत शिक्षा दे रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं, मतलब कई माता पिता ऐसे जनरेशन के होते हैं तो जैसे कि वो उन लोग वो रहते हैं क्या करते हैं? कंफर्टेबल, तो उन लोग का ये होता है कंफर्टेबली उन लोग गाली भी दे देते हैं। अच्छा, गाली देते हैं। Okay. बोल रहे। All right. Okay. So I think what you're saying is when the parents are ignorant about sin and the child also does the same thing in ignorance, what happens? I think that's what your question is. मान लीजिए फिर से पूछो प्रश्न क्या है? When the parents कि- are, वो कुछ करते हैं जो कि गलत है और उससे वो I understood उससे his question. वो बच्चा सीख जाता है, तो वो नहीं जान रहा होता है कि ये गलत है, Hmm. तो वो कर देता है, तो वो पाप बच्चे का होगा कि उसके माता पिता का? Okay. So again, now this depends on whether the family are Christian believers. इस बात को समझना है कि वो माता पिता मसीह विश्वासी है या अविश्वासी है। Right? Now the children, yes, may, like we said, will grow up in the example of the parents. क्योंकि बच्चे माता पिताओं को देखकर बढ़ रहे हैं। But when they reach maturity, जब वो परिपक्व के और बढ़ते हैं या परिपक्वता में आते हैं, it is their responsibility to grow in the wisdom of God. अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई में, अच्छाई में, परमेश्वर के उस शिक्षाओं में बढ़ने के लिए। No matter how the parents were. और ये बात की परवाह नहीं कि माता पिता किस प्रकार के हो। Right? So if I am older, I cannot blame my parents for my sin. और मैं जब मैं अभी बड़ा हो गया है या मैं बड़ा हूँ और समझदार हूँ, तो मैं उस काम की गलतियों को मैं अपने माता पिता के ऊपर नहीं थोपूंगा। It's my choice. वो मेरा चुनाव है। Right? So it is my relationship with God that should change me. और परमेश्वर के साथ मेरा जो रिश्ता है वो मेरे जीवन को बदलता है। So I agree that the child will go through a lot of problems like that. और इस प्रकार की जो समस्या से बहुत से बच्चे लोग जाते हैं, But God will work in the child's life. वो परमेश्वर उस बच्चे के जीवन में कार्य करता है। Right? But if they're unbelievers, लेकिन वो अविश्वासी है तो nobody knows that it's a wrong thing. और वो किसी को नहीं मालूम कि वो गलत है सही है। And that's why we have to reach the gospel to those who don't know God. इसलिए हम उन तक सुसमाचार को लेके जाते हैं, जो इन चीजों को नहीं जाते उनको समझाने का हम प्रयास करते हैं। Okay? ठीक है, और कुछ? Any other question? In his question, will the parents also be held accountable before God if they are believers? Yes. But what if the child is already grown up and already suffered? That doesn't matter. That doesn't matter. We will be held accountable for what we have. When we are believers, we will be held accountable for things we have done. So yes, जब हम parents, विश्वासी हैं तो हमको उसका हिसाब देना है। so there will be a time when we will give account for all that we have done. एक समय आएगा हम उसका हिसाब हमें देना है। Okay? ठीक है,
So who's going to pray today? Who prayed Aaj. yesterday? She prayed. आज कौन प्रार्थना करेगा? A purush, a young man to pray हाँ, today. एक जवान. You have question? Ma'am, I dropped a question in the chat box. You want to pray? Okay, so who's going to pray today? Ma'am, there's a करेगा? question in the chat. Ma'am, there's a question. Are you asking a question? Because I can't hear you. Dr. Mary, are you asking a question? Yes, Okay, ma'am. at times parents try controlling children even 30 plus. How should children react and respond? Okay, very good question. ओके, यहाँ पर एक प्रश्न आया हुआ है ऑनलाइन में कि जब एक बच्चा 30 साल के ऊपर है तो उसके बावजूद भी उसके माता पिता उसे कंट्रोल करते हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी क्या है? Okay, so बच्चे की जिम्मेदारी क्या है? at an age of maturity like 30 plus or 20 plus, और 30 के ऊपर 30 जो उम्र 30 का जो उम्र होता है वो एक परिपक्वता को दर्शा रहा है वहां पर. there is the scripture of Ephesians chapter 6 verse 2. It says, obey your parents in the Lord. और इफिसी की पत्री 6 अध्याय में लिखा है कि बच्चे माता पिता के आज्ञाकारी होना है. Right? So you discern to see whether the obedience to your parents, because if it is controlling, you discern what may be right and what may be wrong. और उस बात को समझना है कि माता पिता जो उन्हें निर्देश दे रहे हैं, उनको काबू में कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है वचन के अनुसार. So it is always helpful for the parent, for the child, for this adult child to bring about their problems or challenges in the way that the parents deal with them. और जब उस ऐसी समस्या आती है, जब ऐसा व्यवहार उनके साथ होता है, तो उन्हें समझना है कि क्योंकि वो जो परिपक्व बच्चे हैं, परिपक्व जवान है, तो वो किस प्रकार उनके साथ व्यवहार करते हैं, इस बात को भी उनको समझना है. Right. So, but still, even after that, if the parents continue to be controlling, it's important for the adult child to make their own decisions. और उसके बावजूद भी माता पिता जबरदस्ती उसके साथ उसे काबू कर रहे हैं, जबरदस्ती उसका व्यवहार कर रहे हैं, तो उस बच्चे का जिम्मेदारी है, स्वयं की जिम्मेदारी है उसको निर्णय लेने के लिए. While also honoring and giving the parents their due respect. और खास तौर में क्या करना है, वो माता पिता का आदर सम्मान करना है. Okay, I hope that answers, Dr. Mary. Yes, ma'am. Thank you very much. Rachna, did you have a question? Did Rachna have a question earlier? Because I see a message. जी मैम, मैं पूछ रही थी कि उस टाइम कि जैसे पति पत्नी के बारे में मैं देख रही थी, सुन भी रही थी, तो जैसे एक पति है तो अगर दूसरी शादी कर ले. Rachna, there is no sound, no volume here. Do you mind texting? मैं ये कहना चाह रही हूँ मैम, अगर पहले से कोई शादीशुदा है लड़की और वो दूसरी शादी कर लेती है तो उसका क्या होना चाहिए? Rachna, we can't hear you. Can you do one thing? Can you keep your question for tomorrow? Kal ke liye, and then we'll ask you the question tomorrow when the sound is okay. Here there's no sound right now. ओके, कल आपकी आवाज नहीं आ रही और उस प्रश्न को कल के दिन आप पूछ सकते हैं जब साउंड यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, या फिर आप So tomorrow morning, someone please remind me to ask Rachna her question. Don't take the responsibility to remind me. All right? Rachna has a question, so we can. प्रश्न का एक प्रश्न है तो वो साउंड लगाकर यहाँ से आवाज को सभी प्रश्न को सही सके. Okay. Can somebody pray? Yeah. Kunal, you're praying? Okay, Kunal. सब अपनी आंखों को बंद करें. धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर. परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज दिन भर संभाल बचा कर रखा, जीवितों को मैं तो जीवित और भला चंगा रखा. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के परमेश्वर क्लासेस को पिता परमेश्वर तूने अपने परमेश्वर टीचर्स के द्वारा बोला और बातचीत किया पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर. परमेश्वर पिता
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने परमेश्वर हमें इन बातों से आशीषित किया, जानकारी दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी क्लासेस खत्म हो गई, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनकर बड़ी दया से ग्रहण करिए सभी। आमीन। धन्यवाद, कल हम फिर मिलेंगे।